Students, today's topic is effect of temperature on resistance and resistivity. Resistance, resistivity, both of these two for semiconductor and insulator decreases with rise in temperature. It means the resistance and resistivity, both of them are inversely related with temperature in case of semiconductor and insulator. For semiconductor and insulator, resistance, resistivity inversely related with temperature. That is, when temperature increases, it decreases, and when temperature decreases, it increases. But in case of conductor, the resistance of the conductor increases with rise in temperature. That means both of these two quantities are directly proportional to each other. Now let us consider a small relation between these two is, suppose R1 is the temperature at theta 1 degree Celsius temperature, यानी theta 1 temperature पे resistance of the conductor is R1, R2, theta 2 temperature पे R2, resistance of the conductor at theta 2 temperature R0 at 0 degree Celsius, that is resistance of the conductor at 0 degree. Now we have a relation between these two resistances. इसकी derivation syllabus में नहीं है, so I am not doing the derivation of this. Directly I am writing the derivation, I mean relation between R1 and R0. R1, that means the final resistance is equal to the initial. If initial is 0, final is theta 1, then R1 equals R0, 1 plus alpha theta 1. यहाँ पे जो टेम्परेचर आपने लिखना है वो इस साइड वाले रेजिस्टेंस का लिखना है. R2 is the resistance at temperature theta 2. So R2 is equals to R0, 1 plus alpha theta 2. We have these two relation. These two relations are writing directly. मैंने इसकी derivations आपको नहीं कराई हैं. जो relation लिखा है वो directly लिखा है. You have to learn this relation as such. Where alpha is the temperature coefficient, dividing equation 2 by 1, you will get R2 divided by R1 equals R0 1 plus alpha theta 2 divided by R0 1 plus alpha theta 1. R2 और R2 एक दूसरे को कैंसिल करेगा and you will get 1 plus alpha theta 2. डिनोमिनेटर वाली चीज़ को आप ऊपर ले आओ, -1. जिसके ऊपर -1 पावर लगाई है उस ब्रैकेट को यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम आई एम एक्सपेंडिंग. बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स पावर आगे आ जाती है एंड हायर टर्म्स. यहाँ पे भी यही करा है. 1 प्लस एक्स की पावर n पावर आगे आ गई, माइनस हो गया, प्लस हायर टर्म्स. हायर टर्म्स निग्लेक्ट कर रहे हैं और इस ब्रैकेट को दैट इज 1 प्लस अल्फा थीटा 2 एंड 1 माइनस अल्फा थीटा 1 इन्हें मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. और इस एक्सप्रेशन में अल्फा स्क्वायर, ऑलरेडी अल्फा बहुत छोटा है तो अल्फा स्क्वायर और भी छोटा होएगा, तो यू कैन निग्लेक्ट दिस टर्म. वी लेफ्ट विद दिस रिलेशन. फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, राइट इट एज डेल्टा थीटा, दैट इज द इंक्रीज और द चेंज इन टेम्परेचर. R2 अपॉन R1 इक्वल टू दिस मच. सो R2 इक्वल्स टू R1 इधर शिफ्ट कर दिया. R2 इक्वल्स टू R1, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. दिस एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेनी न्यूमेरिकल्स हैज़ बीन आस्क्ड. कल इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगी बिकॉज टुमारो इज अ न्यूमेरिकल डे. Also, along with the resistance, we have a relation between the resistivity. You all know कि R is equal to rho L upon A. So, R is proportional to rho. Same relation जो आपने R के लिए निकाला है, उसी expression की help से we will write expression for rho. R2 की जगह rho 2, R1 की जगह rho 1, 1 plus alpha delta theta. Now, the next topic is color code of resistance. कार्बन रेजिस्टर किस टाइप का होता है? अगर कभी लैब में टीचर दिखाएंगी तो इस तरह का एक छोटा सा रेजिस्टर, ये 3 कलर्ड रिंग्स हैं और एक रिंग इनसे थोड़ा दूर बना होता है. इस वाले रिंग के कलर्स फिक्स हैं, या तो गोल्ड कलर होएगा या सिल्वर होएगा या इसका कोई भी कलर नहीं होएगा. फॉर गोल्ड इट्स वैल्यू इज़ 5%, फॉर सिल्वर इट्स वैल्यू इज़ 10%, फॉर नो कलर इट्स वैल्यू इज़ 20%. ये 4th रिंग है. दिस 4th रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉलरेंस. और ये फर्स्ट 3 रिंग कलर्ड रिंग्स होंगे. उन कलर्ड रिंग्स की आपने कोडिंग कैसे लर्न करनी है? आई हैव अ लाइन, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ. बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ. बी का बी लिखा, इस बी का बी रॉय, जो कैपिटल लेटर में पूरे लिखने हैं, ROY, रॉय ऑफ
ग्रेट का G, ब्रिटेन का B, हैज़ स्मॉल है नहीं, वेरी गुड का V, गुड वाइफ। कलर्स कैसे हैं? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। उसके नीचे नंबरिंग लिख ली, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ सपोज आई एम हैविंग वन क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें आपको ये कार्बन रजिस्टर का डायग्राम दिया है और उस डायग्राम में आपको ये फर्स्ट 3 रिंग्स के कलर्स गिवन है, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, गोल्ड। रेड के लिए कौन सा कोड होता है? आप ध्यान से देखो, रेड कलर इज फॉर 2, तो मैंने 2 लिख दिया। सेकेंड रिंग का कलर है ग्रीन, ग्रीन के लिए कौन सा होता है? 5, तो मैंने 5 लिख दिया, 25। थर्ड रिंग को बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? थर्ड रिंग इज कॉल्ड, ये जो थर्ड वाला है इट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। थर्ड रिंग का कलर था ऑरेंज और ऑरेंज इज 3, सो 10 रेज टू द पावर 3। थर्ड रिंग को मल्टीप्लाई में 10 की पावर में लिखना है, प्लस माइनस टॉलरेंस। गोल्ड रिंग की टॉलरेंस होती है 5%, सो आई राइट 5%। सो वैल्यू ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टर इज दिस, 25 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस 5% ओम, क्योंकि आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, सो इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। अब टॉलरेंस का मीन क्या होता है? टॉलरेंस मीन्स 5% ऑफ दिस वैल्यू, यानी 5% ऑफ 25 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। कैलकुलेट किया जा सकता है, 5/100 मल्टीप्लाई बाई 25,000, कटिंग करी यू विल गेट 1250। दैट मीन्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर इज, ये क्या बना? 25,000 प्लस माइनस 5% की वैल्यू आपने निकाली है 1250, तो 1250 ओम। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, आपको रेजिस्टेंस गिवन होएगी और आपने कलर्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे? 8 लिखा है, 8 का मतलब क्या है? ग्रे। तो इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करो और फर्स्ट रिंग पे लिखो ग्रे, 9 पे वाइट, सेकेंड रिंग पे लिखो वाइट, थर्ड रिंग 10 का मल्टीप्लायर है, 10 की पावर क्या लिखी हुई है? 6, 6 पे क्या है? ब्लू, इसका मतलब तीसरा रिंग है ब्लू, ग्रे, वाइट, ब्लू, टॉलरेंस 10%, दैट मीन्स सिल्वर, ग्रे, वाइट, ब्लू और सिल्वर। इस तरह का एक डायग्राम जैसे ऊपर बनाया, बस कलर चेंज कर दो अकॉर्डिंग। मीन्स अगर रेजिस्टेंस गिवन है यू कैन गिव द डायग्राम, अगर डायग्राम गिवन है यू कैन ऑब्टेन द रेजिस्टेंस।